Hello students. Today we will continue mode of nutrition and we will learn something about heterotrophic nutrition. Yesterday we discussed autotrophic nutrition, which is self-dependent nutrition, but this mode of nutrition depends upon other for the gain of food. So hetero जो है, hetero का मतलब ही होता है अदर, और ट्रॉफी जो है nourishment. So the word itself tells that it is a kind of nutrition in which organisms obtain food from other sources and they don't have any mechanism or machinery to manufacture food within their own body. So the organisms who have such kind of mode are known as heterotrophs. उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स. And these organisms includes all animals, including fungi. सब के सब एनिमल्स और फंजाई जो है वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं. There are certain protozoans which are also heterotrophs. Certain protozoans and Monera are also heterotrophs. हम ये देखते हैं कि हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड खुद तैयार न कर सके और अपनी फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो. सपोज आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग है, आपको पता है ह्यूमन बीइंग कहाँ से फूड ऑब्टेन करता है. हम जो खाते हैं डेली फूड, आप उसका पता लगाइए कि वो कहाँ से आती है. सपोज हम अगर चपाती खाते हैं तो वो चपाती कहाँ से आती है? व्हीट प्लांट से. और व्हीट प्लांट हमारा सोर्स ऑफ फूड हो गया, और प्लांट इज इटसेल्फ एन ऑर्गेनिज्म. और हम अगर चिकन खाएंगे तो डायरेक्टली एनिमल खाएंगे. अगर हम मिल्क खाते हैं तो मिल्क जो है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं अपने फूड में, तो वो भी कहाँ से आते हैं? वो एनिमल से आते हैं. So directly or indirectly we are dependent upon autotrophs. किस पे डिपेंड है हम? Autotrophs. और हम इन autotrophs को producers भी कहते हैं. Producers because they are the only organisms on earth which have capability to harness sunlight and convert that energy into chemical energy by the process of photosynthesis. And producers are the organisms which supply food to the whole diversity. सारी डाइवर्सिटी को जो है, बाकी डाइवर्सिटी जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं या बाकी और जानवर होंगे, उनको सारे जो फूड जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स को कहाँ से आती है? ऑटोट्रॉफ्स से ही आती है.
अब देखिए, जो हम ये बताते हैं कि जो हेटेरोट्रॉप्स होता है कि दो these are those organisms which depends upon other organisms for the intake of their food. So the heterotrophs can be of various types. जो heterotrophic nutrition है, वो जो न्यूट्रिशन है अदर ऑर्गेनिज्म से कैसे फूड लाना है, तो उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो हमारे पास, आपको सिंपल सी मैं बात बताऊं कि हमारे पास जो हेटेरोट्रॉप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन बी सेप्रोट्रॉप्स, and saprotrophs are those organisms who have saprotropic nutrition. कौन सी न्यूट्रिशन होती है? saprotropic nutrition. Parasites, they have parasitic nutrition. Parasitic nutrition. We have holozoic न्यूट्रिशन. इस तरह से हमारे पास न्यूट्रिशन है. जो ब्रॉडली हम न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करते हैं वो 3 काइंड्स में करते हैं. तो सेप्रोट्रॉप्स जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? सेप्रोस का मतलब क्या होता है? रॉटन. सेप्रोस, रॉटन. रॉटन का मतलब क्या हुआ? सड़ी हुई चीज खाएं. ठीक है. सड़ी हुई का मतलब क्या होता है कि they are those organisms which take food from their surroundings in the form of fluids or sap. जो ये फूड लेते हैं हम सैप की फॉर्म में लेते हैं या फ्लूइड की फॉर्म में लेते हैं. That means they take already digested food from the surrounding into their body. ठीक है. And hence in such kind of organisms there is extracellular digestion. Extracellular or intracellular, there are 2 kinds of digestions. If the digestion of food takes place within the body of an organism, then that will be called intracellular digestion. And when the digestion of food takes place in outside the body of an organism, and then the food, digested food is taken in, then that type of food digestion is called extracellular digestion. तो आपको मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जो है फंजाई जो है, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. फंजाई. एंड फंजाई में कौन कौन सा आ जाते हैं? जैसे मशरूम आ जाता है, मोर्चिला आ जाता है. सो दीज आर पिज़्ज़ा आ जाता है. देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फंजाई व्हिच यू माइट हैव सीन इन योर सराउंडिंग्स, एंड दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. आप देखोगे वो वहीं पे बनेंगे जहां कुछ सड़ी हुई चीज होगी, और जो सड़ी हुई चीज से क्या करेंगे? दे suck or they absorb the already digested food from the surroundings. क्योंकि जो सराउंडिंग्स में जो फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट किया होता है, या तो उनके एंजाइम वहां पे सराउंडिंग में जाते हैं, या तो किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस फूड को डाइजेस्ट किया हुआ होगा. तो जब वो डाइजेस्टेड फूड जो है ये अपने अंदर लेते हैं और अपना मटेरियल जो है अपना मटेरियल यूज करते हैं और अपने ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस जो है वो चलाते हैं. लेकिन they don't have any mechanism within their body to take the complex food and digest it. Rather they take already digested food from the surroundings in the form of fluid, and that food is utilized by them for various metabolic activities. इसलिए हम फंजाई को वो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, they are also called saprotrophs. तो saprotrophs आपने बोला कि ये भी तो अदर ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड है, लेकिन इनके खाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपने देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. किस पे डिपेंड करते हैं? डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. दे डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. So they are called saprotrophs. We have parasites. Parasitic nutrition. ठीक है. Parasitic nutrition में क्या होता है
कि it is a kind of nutrition in which the food is obtained from other living organisms, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड जो है वो ऑब्टेन किया जाती है, एंड the organisms which take the ready made food from other organisms are called parasites, and जिससे वो फूड लाते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं उनको? सो पैरासाइट एंड होस्ट जो है ये दो चीजें इसमें आ जाती है। इसमें क्या होता है, इसको फायदा होता है और इसको नुकसान होता है। सो इस मोड में इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, इट डेवलप्स पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स फॉर द गेन ऑफ फूड। सो इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन one organism that is parasite is benefited, but host is not benefited, but it is harmed. होस्ट का जो ऑलरेडी अपने होस्ट अपने लिए फूड ले रहा है, अपने एफर्ट से फूड ले रहा है अपने अंदर, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपने बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बट जब पैरासाइट इसकी फूड वही फूड जो है ये लेने लगे तो हम उस तरह के फूड को क्या बोलते हैं, पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो पैरासाइट होता है ये जो है इट गेन नरिशमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। सारा खर्चा जो है इसका कौन करता है, होस्ट का करता है, ठीक है। तो इसलिए दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट जो है हमारे पास जो है काफी टाइप के, हम उनको फर्दर जो है हम कर सकते हैं। एक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं, एक नॉन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स क्या होता है, उनका होस्ट और पैरासाइट का परमानेंट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मतलब वो पैरासाइट का स्पेसिफिक एक होस्ट होता है कि वो वहीं पे जाएगा, उसी से फूड लेगा, बाकी और कहीं भी किसी जगह पे वो नहीं सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। इसलिए उसका जो हैबिटेट ही वही होता है, तो हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स। और जैसे हम ये बोलते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो है हमारे ब्लड का पैरासाइट है एंड इट इज ऑब्लिगेटरी, ठीक है। हमारे ब्लड का एक उसको आइडियल एनवायरनमेंट लगता है, वो वहीं पे वो सर्वाइव और वहीं पे जो है वो रिप्रोडक्शन कर पाता है और रहता भी है। और लेकिन नॉन ऑब्लिगेटरी पैरासाइट जो होता है वो जो नॉन ऑब्लिगेटरी होता है, जो ओकेजनल गेस्ट जिनको हम बोलते हैं, जिनको एक ऑर्गेनिज्म से लेना देना नहीं होता, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जाकर वहां से जो ब्लड उसका ले सकते हैं या कोई और जो से उसका जो उसने अपनी बॉडी के यूज के लिए रखा है उसको खा लेंगे और उसको जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। कहीं जो है आपको पता है कि ऑल द डिजीज काजिंग एजेंट्स आर आल्सो कॉल्ड पैरासाइट्स। उनको पैथोजेंस भी कहते हैं एंड दे आर आल्सो पैरासाइट। आपको पता है कि जो पैरासाइट है वो क्या करता है, दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट। होस्ट खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, वो मतलब कि उसके फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन पैरासाइट को सिर्फ मतलब होता है अपने फूड को लेने से, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासिटिक एंड होस्ट रिलेशनशिप, एंड such kind of nutrition in which the food, ready-made food जो है from the host is snatched by the parasite for its own growth and development is called parasitic nutrition. And the next one is holozoic nutrition जो है। holozoic nutrition जो है ये कैसा न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स फूड जो है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है is taken in and then digested within the body with the help of enzymes and digestive organs, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स टेक व्हाट कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब क्या हो गया कि वो जो है फूड जैसा होगा कॉम्प्लेक्स, जैसे हम हैं वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड। सपोज हम जो भी प्लांट का सीधा सेप जो हमारी अपनी बॉडी में ले जाता है, सीधा जो हम मीट भी हम अपनी बॉडी में ले लेते हैं, जो फ्रूट है, जो ग्रेन्स है, जैसे मूंगफली है, उस प्लांट का पार्ट, आलमंड है वो हम प्लांट का पार्ट, वो कॉम्प्लेक्स फूड है सारा, वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फूड है। और कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना
और लेने के बाद उसकी बॉडी के अंदर उसको तोड़ना, डाइजेस्ट करने का मतलब उसको तोड़ना, इतना तोड़ना कि वो डिफ्यूजेबल बन जाए, इतना पतला बन जाए, वो पानी में की तरह बन जाए, ताकि वो जो फूड है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर ब्लड में पेनिट्रेट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो उसको डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट कैसे किया जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उनकी मदद से और उसमें जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं उनकी मदद से उनको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद वहां से फूड में से न्यूट्रिएंट्स जो है ड्रा किए जाते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, और वहां से हम उसको क्या करते हैं, अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है यूज करते हैं। तो हम वैसे मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और हायर एनिमल्स जो है, हायर एनिमल जो है, जैसे हम टाइगर बोलेंगे, डियर बोलेंगे, काऊ बोलेंगे, आपको पता है, all those organisms takes complex food in their body, and then the food is digested into their digestive system, and then from that digested food the nutrients are absorbed into the blood, which are then utilized for various functioning of our body। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं। लेकिन जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कि पहले ऑर्गेनिज्म जब होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले जो है इसका द स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होता है, इंजेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन के बाद क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे। सो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन और एसिमिलेशन, फिर क्या करते हैं, इंजेक्शन। सो दीज आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द ऑर्गेनिज्म which have holozoic kind of nutrition। ठीक है, जो होलोजोइक का मतलब होता है पूरा ही। ठीक है, तो आप देखिए इंजेक्शन में क्या आएगा, टेकिंग इन फूड, फूड जो है क्या करना, फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड को क्या करना, तोड़ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाएंगे along the concentration gradient, and these are digested from the digestive tract। एब्जॉर्ब हो गया कहां चले गए, ब्लड में चले गए। आप देखिए ब्लड में जाकर क्या होगा, इनका जो है यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हमारी बॉडी करेगी वो कैसे करेगी, दे आर यूटिलाइज्ड हाउ they are utilized in our cells and which is called cellular respiration। और वहां पे हमारे सेल में जाके ये न्यूट्रिएंट्स जो है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स से हम एनर्जी ले लेते हैं, प्रोटीन से हमारे अपनी बॉडी का जो है मटेरियल बनाते हैं, जैसे प्रोटीन ग्रुप के अमीनो एसिड्स बनते हैं, और हम अपनी बॉडी जो है वो अमीनो एसिड से बनाते हैं। आप यही समझेंगे कि जब एसिमिलेशन किया जाता है कि आपने किसी का घर तोड़ना है और उसका तोड़ के वही ईंटें वहां पे लगी हैं, वही ईंटें ला के अपने घर बनाना है। ठीक है, तो सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे इसी तरह से अमीनो एसिड है। जो प्रोडक्ट हम खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स। वो अमीनो एसिड जुड़ के कुछ अलग चीज बनाते हैं, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन वहां पे हमारी बॉडी में सेम नहीं होता है। अब
हम हमारे डाइजेशन सिस्टम में क्या किया जाता है, उन अमीनो एसिड को तोड़ के सिंगल किया जाता है और वो अमीनो एसिड फिर जाके क्या करते हैं हमारी बॉडी में अपने हिसाब से जो है हमारा डीएनए उनको जोड़ता है। तो जब अपने हिसाब से जोड़ेगा तो हमारी बॉडी का मीट बनेगा, हमारी बॉडी के एंजाइम्स बनेंगे, हमारी बॉडी के हार्मोन्स बनेंगे। तो इसीलिए दिस ऑल द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, हम उनको यूज कर देते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं वो कुछ स्टोर हो जाते हैं, कुछ जो है हम यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बचा, तो हमने क्या कर दिया, इसको यूटिलाइज किया, इसका यूज कर दिया हमने अपने बॉडी के प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस को रन करने के लिए। तो आप समझ लेना कि न्यूट्रिशन हो गया। और लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट जो है प्रोडक्ट्स जो है इंक्लूडिंग अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड मटेरियल इज एक्सपेल आउट। एक्सपेल, इसको क्या किया जाता है, ये एक्सपेल आउट जो है थ्रू एनस, इसको जो है एनस से एक्सपेल किया जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ holotropic nutrition and this is all about my today's lecture। आपको इसके रिलेटेड जो भी नोट्स चाहिए दे आर as a link in this below description of this video, so kindly use that notes also and watch the videos, and for any queries you can comment there also. Thank you.